गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस करेंगे। उम्मीद है आपने कल की वीडियो देखी होगी, क्योंकि अगर आपने कल की वीडियो देखी है तभी आप इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ Find the values of other 5 trigonometric functions in cos x equal to minus 1 by 2 x lies in third quadrant। अगर cos x की वैल्यू माइनस हाफ है और जहाँ पर x थर्ड क्वाड्रेंट में है, मतलब तो हमें बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू बतानी है। cos x से आप sin x sec x निकाल सकते हैं रेसिप्रोकल करके। So sec x equal to 1 by cos x, that is minus 2. Now you have an identity sin square x plus cos square x equal to 1. From this you can find sin square x as 1 minus cos square x, that is 1 minus, put the value of cos x here, then it becomes 1 minus 1 by 4, that is 3 by 4. Then sin x will be plus minus root 3 by 2 after taking under root. But which sign we have to take, it depends on in third quadrant whether sin x is positive or negative. So in yesterday's video I have told you that in third quadrant sin x is negative, so we will take the negative sign of sin x. So sin x is equal to minus root 3 by 2. Now cosec x is its reciprocal, so it will be minus 2 by root 3. Then tan x is sin x divided by cos x, put the values of both, then you get root 3. Then cot x is reciprocal of tan x, that is 1 by tan x, so it becomes 1 by root 3. This is the fifth question. Find the values of other 5 trigonometric functions if tangent x equal to minus 5 by 12 and x lies in second quadrant. Second quadrant में tangent नेगेटिव ही होता है। अब हम tangent x दिया हुआ है हमें, तो इसकी हेल्प से हम cot x लिख सकते हैं 1 upon tangent x, so it becomes minus 12 by 5. You have studied the identity 1 plus tan square x equal to sec square x. So put the value of tan x here and do the calculations. You will get sec square x equal to 169 divided by 144. So sec x will be plus minus 13 by 12. अब हमें देखना है सेकेंड क्वाड्रेंट में sec x हमारा पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। तो sec x हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, so we will take the negative sign. So sec x is equal to minus 13 by 12 and cos x is reciprocal of it, so it is minus 12 by 13, and tangent x is sin x divided by cos x. So from here you can find sin x, then put the value of tan x and cos x, you can find sin x. Or you can also find sin x by using under root 1 minus cos square x. You can also use that identity also. Then cosec x is reciprocal of sin x, that is 13 by 5. Now this is the sixth question. Find the value of trigonometric function sin 765 degree. ये क्वेश्चंस बेटा 6 ऑनवर्ड जो हैं, ये एग्ज़ाम में अक्सर 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, सो डू इट्स प्रैक्टिस वेरी केयरफुली। अब हमने कल देखा था कि साइन कॉस की वैल्यू 2 पाई के इंटरवल पे रिपीट होती हैं, उसके बाद वो रिपीट होना शुरू होती हैं। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि वो 2 पाई प्लस या माइनस समथिंग हो जाए, एंगल हो जाए। तो 765 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 360 प्लस 45, क्योंकि ये 720 बन गया। 720 प्लस 45 इज 765। अब साइन 2n पाई प्लस x इक्वल टू साइन x होता है, कल हमने करा था, मतलब 2 पाई के मल्टीपल पे अगर है तो देन इट इज़ साइन इक्वल टू साइन x।
So it becomes sine 45 degree, and sine 45 degree is 1 by root 2. So put here root 2. Next is find the value of the trigonometric function cosec minus 1410. तो हमें देखना है कि ये 2 पाई के मल्टीपल में मतलब 3 क्योंकि कॉसेक की वैल्यू भी 2 पाई के इंटरवल पे रिपीट होती हैं, तो इसको भी हम 2 पाई के टर्म्स में लिखेंगे। तो आप इससे बड़ा जो 2 पाई का मल्टीपल है उसकी टर्म्स में इसको लिखिए, तो यू विल गेट 4 इंटू 360 डिग्री माइनस 1410 डिग्री, बिकॉज 4 इंटू 360 क्या होगा, हमारे पास 1440 डिग्री होगा। तो हम इसको ये लिख सकते क्योंकि कॉसेक 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है, तो उस चीज़ को हमने यूज़ करा है। एंड एक्सक्यूज मी, तो यहाँ पर ये हमारे पास आ गया, इसको अब एंगल को सब्ट्रैक्ट करिए। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट कॉसेक 30 डिग्री, एंड कॉसेक 30 इज़ 2। तो यहाँ हमने इस चीज़ का यूज़ करा है कि साइन कॉस 2 पाई के इंटरवल पे रिपीट होते हैं। तो जो भी एंगल गिवन है उसमें प्लस माइनस कुछ 2 पाई करना है, आपने 2 पाई का कोई मल्टीपल लिखना है, जिससे कि कैलकुलेशन आपकी इन टर्म्स ऑफ 0 to 90 आ जाए बीच में। देन नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेंजेंट 19 पाई बाय 3। अब टेंजेंट फंक्शन रिपीट्स आफ्टर एन इंटरवल ऑफ पाई, तो इसे हम पाई की मल्टीपल्स में लिखेंगे। तो यू कैन राइट इट एज व्हेन यू डिवाइड इट यू विल गेट 6 पाई एंड पाई बाय 3. So you can write it 6 1 by 3 pi, or you can write it as 6 pi plus pi by 3. एल्सियम लेंगे वही आ गया 19 pi by 3. तो यहाँ ये पाई का मल्टीपल हो गया, तो टेंजेंट एन पाई प्लस एक्स, टेंजेंट एक्स होता है, तो उस चीज़ को हमने यूज़ करा। तो टेंजेंट एन पाई मीन्स 6 पाई प्लस एक्स है, एन की जगह 6 है, सो दैट इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स। सो इट बिकम्स टेंजेंट पाई बाय 3, दैट इज टेंजेंट 60 डिग्री, and its value is root 3. That's all for today. Now you can complete this exercise. If you have any doubts, you can ask me. Thank you.